once again, hello everyone. Today we are going to do the sixth lecture of the chapter Reproduction in the Lower and Higher Plant. In this chapter and in this lecture, today I am going to finish one of the important topic, that is pollen crystal interaction. So we are going to understand what is the meaning of pollen crystal interaction and what is the application of the pollen crystal interaction. सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि pollen crystal interaction होता क्या है एंड इसका एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से यूज किया जाता है बाय नोइंग द मेथड ऑफ pollen crystal interaction. इसके प्रीवियस चैप्टर में you are studying what is pollination and what are the different type of pollination, and also you learn about what is the agent of pollination. तो हमने देखा था there are the various type of pollination. Basically हमने दो टाइप का pollination देखा था, that is cross and self pollination. After that we are also see the agent of pollination जिसमें biotic and abiotic pollination थे. So pollination का मतलब था the transfer of pollen grain from anther to the stigma of flower by the external agent, may be a biotic or abiotic. तो इस चैप्टर में हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि व्हाट इज पॉलन. इस लेक्चर में हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि व्हाट इज पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, बिकॉज स्टिग्मा स्टिग्मा इज लाइक अ कैरियर. वो पॉलन ग्रेन को कैरी करते हैं. Now, in the case of daytime, there are a lot of pollen grain of different type of plant. दिन के वक्त बहुत सारे pollen grain different plant के स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक होने की कोशिश करते हैं, but that pollen grain are not allowed by the stigma because pollination and fertilization process के लिए stigma require the correct type of pollen grain. अगर सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सनफ्लावर या रोज का प्लांट, तो इफ इट इज अ रोज प्लांट एंड इट इज अ फीमेल पार्ट दैट इज अ स्टिग्मा, so the female part of the stigma are just waiting for the pollination. If the pollen grain of same species of same plant, that means कि रोज का pollen grain ही आएगा, then stigma are able to accept and the further process will take place. अगर किसी दूसरे का pollen grain आता है तो उस पे stigma are not able to accept that, डायरेक्टली वो रिजेक्ट कर देता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हाउ, because there are so many types of plant or there are so many type of pollinating agent जिसके pollen grain में भी air के थ्रू आते होंगे या कोई insect के थ्रू या bird के थ्रू, mostly wind के थ्रू आते हैं. बट स्टिग्मा के पास ऐसा क्या मैकेनिज्म प्रेजेंट है, स्टिग्मा ऐसा कैसे एक्सपीरियंस करता है या कैसे आइडेंटिफाई करता है कि दैट pollen grain जो स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुआ है दैट इज द pollen grain ऑफ सेम स्पीसीज. अगर वो सेम का है तो स्टिग्मा विल अलाउ एंड फर्दर प्रोसेस विल टेक प्लेस. फर्दर प्रोसेस का मतलब दे विल अलाउ टू ग्रो द pollen ट्यूब. उसके बाद उसके अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन एंड दैट रिजल्ट टू द फर्टिलाइजेशन. अगर वो नहीं है तो स्टिग्मा डायरेक्टली उसको रिजेक्ट करता है. तो हाउ द स्टिग्मा आर आइडेंटिफाई, आखिर स्टिग्मा आइडेंटिफाई करने के पीछे क्या रीजन है, वो हम स्टडी करेंगे ये लेक्चर में, ये टॉपिक में, जिसका नाम है pollen crystal interaction. Now what is pollen crystal interaction? अगर किसी ने डेफिनेशन पूछा कि pollen crystal interaction क्या होता है, तो you have to write a simple definition. All the events from the deposition of pollen grain on the stigma to the entry of pollen tube are referred to as a pollen crystal interaction. जो भी इवेंट है pollen grain का स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड होना, फिर वहां से pollen ट्यूब का डेवलपमेंट होना, उस पूरे प्रोसेस को we are referred as pollen crystal interaction. Because stigma are interacted, pistil are interacted toward the pollen grain. That is why
ये इंटरेक्शन के बाद ही पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है एंड आफ्टर दैट द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। तो ये पूरे जो प्रोसेस होता है डिपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन से लेकर पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होना, उसके अंदर पॉलन ग्रेन एंट्री करना, इस सारे प्रोसेस को वी आर सेइंग कि पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। अब ये प्रोसेस कैसे होता है? It is very dynamic process involves pollen recognition followed by the promotion or inhibition of pollen germination। तो एक बहुत ही स्पेशल टाइप का एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें पॉलन को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया जाता है, पॉलन को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाता है कि यस दिस इज द राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। एक बार कंफर्म हो गया तो उसको अलाउ किया जाता है कि वो जर्मिनेट हो। अगर वो राइट टाइप का पॉलन ग्रेन नहीं है तो उसको इनहेबिट किया जाता है, मीन्स उसको अलाउ नहीं किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब और फर्दर प्रोसेस। Cross pollination by any agent is always by chance। तो क्रॉस पॉलिनेशन ये एक चांस होता है, ये कंपलसरी नहीं होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन सबके अंदर हो। इट इज अ चांस। It does not guarantee the transfer of right type of pollen grain, compatible pollen grain of same species of the stigma। क्रॉस पॉलिनेशन किसी भी एजेंट के थ्रू ये एक चांस होता है, मतलब वहां पे कोई गारंटी नहीं है कि वो स्टिग्मा पे उस प्लांट के फ्लावर के ऊपर राइट टाइप का पॉलन ग्रेन ही लाके वो दे। Maybe that pollination must be happen through the biotic or abiotic। अगर कोई insect, bird या air water के थ्रू अगर pollen grain जा रहा है from different plant to different plant, मतलब different plant का जो species different species के जो pollen grain है वो उस plant के ऊपर जा रहे हैं, तो ये बहुत ही कम चांसेस होता है, इसमें कोई गारंटी नहीं होता है कि pollen grain हवा के थ्रू आ रहा है तो राइट टाइप का ही pollen grain स्टिग्मा के ऊपर फॉल होगा, ये बहुत ही कम चांस है। Now, यहाँ पे you are going to study the two important term, that is the compatible and non-compatible। What is the meaning of compatible? अगर pollen grain same type of species का है, अगर रोज प्लांट का pollen grain रोज प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर फॉल हो रहा है तो such type of process is known as the compatible pollen grain। इसको compatible pollen grain कहते हैं। अगर वो different pollen grain, because through the pollination by a different type of agent there are n number of pollen grain स्टिग्मा के ऊपर घूमते रहते हैं, तो अगर वो किसी और प्लांट का pollen grain स्टिग्मा के ऊपर लैंड होने की कोशिश कर रहा है तो दैट इज नोन एज अ नॉन कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल pollen grain। Quite often, the wrong type of pollen grain, either from other species or from same plant, but is self-incompatible land on the stigma। तो ये देखा गया है कि most of the different plant और उसी के most of the different plant के pollen grain मे भी सेम स्पीसीज के हो, वो आकर स्टिग्मा पे लैंड होने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज इनकम्पैटिबल। The pistil have the ability to recognize the pollen if it is right type। The pistil accept it and promote the pollination even that lead to the fertilization। जैसे मैंने बताया कि स्टिग्मा के पास ये एबिलिटी है, स्टिग्मा हैव द एबिलिटी कि वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई करे कि दैट पॉलन ग्रेन उसका है या किसी और का है। इफ इट इज राइट टाइप, अगर उसको लगा कि मेरा जो प्लांट है, अगर वो सनफ्लावर का प्लांट है, सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर के स्टिग्मा को लगता है कि वो सनफ्लावर का पॉलन ग्रेन है, तो दैट इज द राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन, तो उसको एक्सेप्ट करता है और उसके बाद फर्दर प्रोसेस होता है। फर्दर प्रोसेस का मतलब दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, और उसके बाद पॉलन ट्यूब डेवलप होने के बाद जो मेल गैमेट होते हैं वो पॉलन ट्यूब से एंटर करते हैं एंड दैट लीड टू द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। आगे का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होना शुरू होता है। बट इफ इट इज रॉन्ग टाइप, ये तो था कि अगर वो राइट टाइप का है तो उसको एक्सेप्ट किया गया है एंड फर्दर प्रोसेस होना शुरू होता है जो कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है इसके बाद वाला टर्म। अगर वो रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टल इज डायरेक्टली रिजेक्ट दैट पॉलन ग्रेन to prevent the germination of the pollen on the stigma and the growth of pollen tube in the style। तो ये टोटली रिजेक्ट कर दिया जाता है, pollen grain को अलाउ करते ही नहीं है, और अलाउ नहीं करेंगे तो ना वहाँ पे pollen का germination होता है ना वहाँ पे pollen tube का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से that pollen grain are totally rejected by the stigma। तो ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस है
Thus, only right type, that is compatible pollen germination on the stigma and the pollen tube come out through the one of the germ pore. तो यहाँ पे जो राइट टाइप के पॉलन ग्रेन होते हैं, अगर वो सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन है तो स्टिग्मा उसको अलाउ करता है। अलाउ होने के बाद दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब मतलब क्या होगा कि हमने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी किया था। तो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में दैट इज द जर्म पोर, मतलब थोड़े थोड़े बीच बीच में कहीं पे ग्रुप होते हैं। हमने ये भी देखा था कि इफ इट इज डाइकॉट प्लांट तो उसके पास 3 जर्म पोर होते हैं। इफ इट इज मोनोकॉट प्लांट तो 1 जर्म पोर होते हैं। तो उस जर्म पोर से पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। उस पॉलन ट्यूब से दो मेल गैमेट स्टाइल के थ्रू स्टाइल के थ्रू ओविल के पास पहुंचते, ओवरी के पास पहुंचते हैं। उसके बाद वो अंदर एंट्री करते हैं ओविल के अंदर, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। The content of pollen grains move into the pollen tube and it grow through the tissue, stigma and then the style. तो जो जैसे बता रहा हूँ मैं कि if it is right type of pollen grain, तो जो भी उसका कंटेंट है मीन्स pollen grain के अंदर जो कंटेंट होता है that is a मेल न्यूक्लियस, दो मेल गैमेट होते हैं। तो ये सारा पॉलन ट्यूब के थ्रू, पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है दैट टेक प्लेस इन द स्टाइल। तो एक बार स्टिग्मा ने उसको अलाउ किया तो स्टाइल के अंदर दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब के अंदर सिर्फ दो मेल गैमेट ही अलाउ किया जाता है। In most of the plant, pollen grain are shaped at a two cell stage। तो हमने ये भी देखा कि pollen grain के स्ट्रक्चर में दो सेल स्टेज होता है इनिशियली। एक तो होता है वेजिटेटिव और दूसरा होता है generative cell। The generative cell divide and form the two male gamete during the pollen tube। जैसे बताया है कि जो generative cell है उसका डिवीजन होता है and the development result into the formation of two male gamete। ओके, जो कि pollen tube के थ्रू स्टाइल में के ओविल तक पहुंचता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। नाउ after reaching the ovary, the pollen tube enters the ovule through the micropylor and then enter one of the synergies through the filiform apparatus and burst to release the male gamete। तो जैसा उसको एंट्री मिला पॉलन ट्यूब का, पॉलन ट्यूब ने दो मेल गैमेट रिलीज किया है। पॉलन ट्यूब के अंदर से दो मेल गैमेट सीधा अंदर जा रहे थ्रू द स्टाइल। पॉलन ट्यूब ओविल के अंदर एंट्री करता है। द एंट्री इज नोन एज अ माइक्रोपाइल। एज यू नो कि माइक्रोपाइल के थ्रू ही पॉलन ग्रेन का एंट्री होता है। और एंट्री होने के बाद हमने एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर देखा था, एनाटोपरस ओविल देखा था। एनाटोपरस ओविल में 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब 3 सेल जो ऊपर के पार्ट रहता है चलाजल पार्ट में उसको हम एंटीपोडल्स बोलते हैं। बीच में दो सेंट्रल न्यूक्लियस होते हैं एंड नीचे सिनर्जिट और पैक सेल होते हैं। तो एक सिनर्जिट उसमें से जो कि फुल्ली फॉर्म apparatus प्रोड्यूस करता है उसका बर्स्ट होता है और उसके अंदर से मेल गैमेट रिलीज होते हैं। ऑल दिस इवेंट आर द पार्ट ऑफ पॉलन इंटरेक्शन। तो जो भी इवेंट हुआ दैट ऑल कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ना व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो ये तो हो गया कि किस तरह से पॉलन ग्रेन ने स्टिग्मा को इंटरेक्ट किया, पिस्टल को इंटरेक्ट किया। एक बार पिस्टल ने आइडेंटिफाई कर लिया कि यस दिस इज माय पॉलन ग्रेन, ये राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है, देन स्टिग्मा आर अलाउ कि नाउ you are able to grow a pollen tube। So there is a development of pollen tube which release the pollen grain release the two male gamete into the pollen tube, और उसके बाद वो सीधा ओविल के अंदर एंट्री करते हैं बाय द माइक्रोपाइलर रीजन एंड इस तरह से उसका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, क्या इसका कुछ यूजेस है? The ability of pistil to recognize the pollen is due to the certain chemical component present in the pollen grain which interact with those of the pistil। तो ऐसा कहा गया है, ऐसा देखा गया है, ऐसा स्टडी किया गया है कि हमने बोला कि हाउ द स्टिग्मा आर एबल टू आइडेंटिफाई कि वो पॉलन ग्रेन उसी का है, बिकॉज दिन भर में देर आर एन नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा से होके गुजरते हैं बट स्टिग्मा आर नॉट अलाउ एनी ऑफ देम, किसी को अलाउ नहीं करता है
स्टिग्मा जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइप ऑफ pollen grain. तो जैसे ही राइट टाइप का pollen grain इसके पास आएगा तो इट विल एक्सेप्ट दैट pollen grain. तो आखिर स्टिग्मा के ऊपर ऐसा क्या चीज प्रेजेंट है जिसके थ्रू वो इजीली आइडेंटिफाई करता है कि वो राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है. So some researchers are identifying that there is some chemical component which are present on the stigma which is similar to the chemical component present in the pollen grain. ये दोनों का जो chemical content है स्टिग्मा के ऊपर एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसको स्टिग्मेटिक फ्लूइड बोलते हैं. उसके अंदर का जो केमिकल है दैट इज सिमिलर टू दैट pollen grain of same type of plant of same type of species plant. तो ये वो जो आइडेंटिफिकेशन है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल मैचिंग. ये केमिकल दोनों मैच करते हैं एंड ये केमिकल मैच हो गया तो स्टिग्मा दैट स्टिग्मा आर एबल टू जज यस दिस इज माय दिस इज अ राइट टाइप ऑफ pollen grain उसको अलाउ करो. तो द स्टडी शो दैट उसके ऊपर देयर इज सम केमिकल प्रेजेंट जो कि केमिकल मैच के थ्रू ही स्टिग्मा उसको अलाउ करता है. Botanists have been able to identify some of the pollen and crystal components and interact leading to the recognition followed by the acceptance or rejection. तो botanists ने इसको properly study किया है कि pollen crystal interaction होता कैसा है. उन्होंने right type और wrong type दोनों pollen grain artificially डाल के देखा है कि स्टिग्मा किसको रिजेक्ट करता है और किसको एक्सेप्ट करता है. उसके बाद रिजेक्ट करने का रीजन एंड एक्सेप्ट करने का रीजन तो दे आर आइडेंटिफाई कि दिस टाइप ऑफ केमिकल बिकॉज हर एक pollen grain और हर एक स्टिग्मा का स्टिग्मेटिक फ्लूइड मीन्स जो केमिकल कंटेंट स्टिग्मा के ऊपर प्रेजेंट होता है दैट आर डिफरेंट. तो उन्होंने क्या किया कि दैट केमिकल आइडेंटिफाई करने के बाद उसका एक्सट्रैक्ट बनाया और किसी दूसरे pollen grain में उस केमिकल को अलाउ किया. केमिकल को उसके ऊपर उन्होंने स्प्रे किया एंड उस स्प्रे को उन्होंने उस स्टिग्मा के ऊपर अलाउ किया बिकॉज स्टिग्मा का जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट है दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द केमिकल कंटेंट. अगर उस pollen grain का केमिकल स्टिग्मा के केमिकल के साथ मैच कर रहा है तो pollen grain ना सोचते हुए उसको स्टिग्मा ना सोचते हुए उस pollen grain को अलाउ करता है. तो यहाँ पे if the botanists want to develop the certain variety of plant उनको अगर hybrid variety of plant develop करना है तो ये बहुत ही बेस्ट मेथड है कि उन्होंने केमिकल आइडेंटिफाई किया और किसी और का pollen grain पे सेम तरह का केमिकल उन्होंने स्प्रे किया and that allowed to fall on the stigma. And stigma यहाँ पे they like to identify because the chemical are matching. तो अगर केमिकल मैच कर रहा तो स्टिग्मा ना सोचते उसको अलाउ करते हैं एंड दैट इज अ चांस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज एक बार उसको एंट्री मिल जाता है तो आगे का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है. The knowledge gained in this area would certainly help the plant breeder in manipulating pollen crystal interaction, even incompatible pollination to get desirable. तो मैंने जैसे बताया कि ये नॉलेज होने के बाद बहुत सारे जो प्लांट ब्रीडर जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करते हैं. इनके लिए बहुत ही यूजफुल है कि वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट को इस तरह से ब्रीडिंग कर सकते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन के जिसमें इनकम्पार्टिबल अगर किसी दूसरे प्लांट का भी पॉलन ग्रेन है तो हम उस pollen grain पे वो स्टिग्मेटिक फ्लूइड डालकर उस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जो आइडेंटिफिकेशन है स्टिग्मा का दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स which are present on the stigma and that same are present in the pollen grain. अगर ये दोनों का मैचिंग होता है तो स्टिग्मा इजीली अलाउ करता है. तो ये प्लांट ब्रीडर की ये जो नॉलेज इन्होंने गेन किया ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया ये बहुत ही हेल्पफुल है द प्लांट ब्रीडर जिसको ब्रीडिंग करना है डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर एक प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्पज. तो ये बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है और यहाँ पे हमने ये जो एक छोटा सा टॉपिक था दैट इज पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन वो हमने फिनिश किया. इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन की एक यूनिक कैरेक्टर है जो कि इसके बाद का प्रोसेस है. एक बार स्टिग्मा ने राइट टाइप के pollen grain का सिलेक्ट किया. सिलेक्ट करने के बाद उसको ओविल तक लेके जाते हैं. ओविल के बाद जैसे ही दो मेल गैमेट अंदर अलाउ करते रहता है हेल्प ऑफ माइक्रोबाइल then further process take place. Further process में there is a two male gamete
तो दो मेल गैमेट है तो दो मेल गैमेट का वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो दैट इज वाई दे आर नोन एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, दैट इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि बाकी प्लांट में होता नहीं है। So we can see that topic in the next lecture.